Earning Labs presents a webinar on taxation for digital entrepreneurs by Vinay Murka. Before we begin, make sure to join our group and subscribe to the channel for more. Group link is available in the description below. सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ काफी टाइम से क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास फ्रॉम ब्लॉगर्स एंड एवरीवन कि क्या टैक्सेशंस हैं, इनकम टैक्स के क्या हैं, जीएसटी के क्या नॉर्म्स हैं फॉर ऑल दोज थिंग्स। सो मैंने कुछ बेसिक चीजें मैं यहाँ स्टार्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले लेट वी स्टार्ट विद द इनकम टैक्स। A lot of guys are coming up income tax का क्या norms हैं, what are the norms of the income tax and what are the limits. For income tax, the first basic thing is if your receipts are more than 2.5 lakh rupees in one financial year. Receipts. Again, I'm saying it is receipts. It is not your profit or income. It is your receipts in your account are more than 2.5 lakh rupees in a particular financial year, then you are liable to file income tax returns in upcoming financial year. What is the financial year in India? It is from 1st April to 31st March. Okay, so in that particular period, if you are receiving more than 2.5 lakh rupees in that entire year, you must file income tax return. Okay, that is the basic thing. It is nothing to do with your profit or anything. Now you are getting voice? Yeah. So Sarsh, you can come with me. Yeah. So income tax, I mentioned 2.5 lakh per annum receipts. I hope everyone is clear about that. If you are receiving more than 2.5 lakh, I very much mention here, if you are receiving more than 2.5 lakh per year in your bank accounts, you must file the income tax. If you are receiving 10 or 20 lakh, then obviously it is huge amount. So ITR is need to file there. Okay. This is for income tax. It is not, your income may be less. You may be earning 50,000 itself. Okay. But you have to file ITR if you are receiving more than 2.5 lakh per annum. That is a very much clear norm. Okay, so second is the income tax slabs. Okay, so if you are earning say 5 lakh, it is not like you are going to pay 30% of the 5 lakh. No, there are different slabs which we'll share later after this webinar. So as per those slabs, you have to file your income tax. These all income tax norms I am telling about the individuals. Companies Act we'll talk in the later in this session. For individuals, there are different slab for income tax, in which whatever the slab you fall in, as per that only you have to pay taxes. Now I'm coming to the most important part, that is GST. How many here are registered in the GST? If anyone? Okay, Joy. There is one question. If you are buying services from outside India, okay. So first thing, I tell you about the GST. What is the registration rule? If in one financial year, your receipts are more than 20 lakh rupees, then you have to register for GST. Receipts can be local or international payment. A lot of people are saying we are only receiving international payments, so that is 0% tax, then we may not need not to register. But in GST, if your total receipt are more than 20 lakh, it may be international or export of services, आपको बाहर से भी पैसा आ रहा है, आपको रजिस्टर करना मैंडेटरी है। 20 लाख अगर आप क्रॉस करें, अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में मिड ऑफ द ईयर आप क्रॉस कर रहे हैं, उसी मोमेंट पे आपको रजिस्टर करना है। जैसे अप्रैल में शुरू हुआ है साल और सितंबर तक आते आते आपके 20 लाख की रिसिप्ट्स हो गई हैं। जैसे ही 20 लाख की रिसिप्ट हुई,
आपको रजिस्टर करना है जीएसटी के लिए। जीएसटी रजिस्टर करते ही अगर आपका एक्सपोर्ट का ज्यादा इनकम है तो इमीडिएटली आप एलयूटी अप्लाई करेंगे, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या है कि जब आप एक्सपोर्ट सर्विस करते हैं तो वहां पे 0% टैक्स लगता है। अगर आप एलयूटी नहीं लेंगे तो आपका 0% नहीं, आपको 18% चार्ज करना पड़ेगा और वो बाद में गवर्नमेंट से रिफंड मांगना पड़ेगा जो भी आप एक्सपोर्ट करेंगे। तो एलयूटी ऑनलाइन ही मिलता है, आप इमीडिएटली उसको अप्लाई कर सकते हैं जैसे ही आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन देते हो। तो एलयूटी आप ये नोट डाउन भी करते चले, एलयूटी आपको हर साल लेना होता है। हर साल मार्च में आप अगले फाइनेंशियल ईयर का एलयूटी ले लें अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज करते हैं। अगर आपको बाहर से पैसा आ रहा है जैसे डोमेन बेच के या गूगल से या यूट्यूब का या फेसबुक से, अगर ये सब बाहर से अर्निंग्स आ रही है, एलयूटी इज वन, सिर्फ आपके अकाउंट में है, इट इज नॉट रिलेटेड टू पार्टी। एलयूटी सिंगल पॉइंट है, आपके जीएसटी नंबर पे आपको मिलता है। सामने कितनी भी पार्टी हो उसमें पार्टियों का नाम नहीं आता है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इज फॉर योर ओन कंपनी, आपकी जो भी कंपनी है या आप इंडिविजुअल भी रजिस्टर करते हैं तो आप अपने लिए एलयूटी ले रहे हैं कि मैं जो भी एक्सपोर्ट कर रहा हूं मेरे पास उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन है, और अगर मैं ये कभी भी गवर्नमेंट पूछती है कि एक्सपोर्ट प्रूव करें तो मैं प्रूव करूंगा, और अगर प्रूफ नहीं होता है तो मैं उसका टैक्स पे करूंगा। ये डिक्लेरेशन उसके लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, आप गवर्नमेंट को अंडरटेकिंग दे रहे हो ये चीज की कि गवर्नमेंट कभी भी मुझसे पूछ सकती है कि मैंने एक्सपोर्ट किया है, उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन मैं उनको प्रोड्यूस करूंगा और उसके हिसाब से मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट वहां पे देखे। अगर कहीं पे भी फॉल्ट होता है डॉक्यूमेंट में तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। वो अंडरटेकिंग आप दे रहे हो एलयूटी में। एलयूटी आपको हर साल लेनी पड़ती है अगले साल के लिए। सो मार्च में आप ये कुछ नोट डाउन भी करके रखें अपने पास डेट्स कि एवरी ईयर मार्च में आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए एलयूटी अप्लाई कर दें। उसके बाद जो सबसे मेन कंफ्यूजन आता है, हम लोग बहुत सारी सर्विसेज फॉरेन प्रोवाइडर से खरीदते हैं। यहाँ पे मैं अंडरलाइन करूंगा खरीदते हैं, जैसे हम डायनाडॉट से खरीदते हैं, इनोम से खरीदते हैं, टूकाउस से खरीदते हैं। आप बहुत सारी सर्विसेज बहुत सारे फॉरेन प्रोवाइडर से खरीदते हैं। मेरे ख्याल से सब लोग खरीदते होंगे यहाँ पे फॉरेन प्रोवाइडर से सर्विसेज। अगर आप फॉरेन प्रोवाइडर से सर्विसेज खरीद रहे हैं तो आपको जीएसटी इमीडिएटली लेना पड़ेगा। उसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं है, 20 लाख की या ये कोई भी लिमिट नहीं है। आप इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज अपने बिजनेस के लिए, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे फ्रॉम वेरी स्टार्ट यू हैव टू रजिस्टर फॉर जीएसटी। आप किसी भी टाइप का परचेज आपके बिजनेस के लिए कर रहे हैं, डोमेन खरीद रहे हैं, होस्टिंग खरीद रहे हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट कंपनी को पे कर रहे हैं, किसी एफिलिएट मार्केटिंग के लिए पे कर रहे हैं, कोई टूल खरीद रहे हैं आपके लिए, जो भी आप फॉरेन कंपनी को पे कर रहे हैं, नॉन इंडियन कंपनी को जो आपसे जीएसटी चार्ज नहीं कर रही, तो आपको इमीडिएट बेसिस पे उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और परचेज के ऊपर, आपकी परचेज के ऊपर जीएसटी भरना पड़ेगा। आई होप ये सबसे ट्रिकी पार्ट है। एवरीवन इज क्लियर अबाउट दैट? सहर्ष? यस, फेसबुक से आप लेते हैं या गूगल यूएसए का अकाउंट है आपका, और अगर इंडियन अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप इंडियन अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं, आपको परचेज के ऊपर जीएसटी भरना पड़ेगा। आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा और परचेज के ऊपर फेसबुक की जितनी भी सर्विसेज हैं या गूगल की जितनी भी सर्विसेज हैं उन पे जीएसटी भरना पड़ेगा 18% से। आप जो भी डोमेन खरीद रहे हैं, होस्टिंग खरीद रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया है या जो है, अब पीछे का मैं कुछ नहीं बोल सकता, बट आगे के लिए आप जरूर करें। इसको रिवर्स सीएम बोलते हैं, रिवर्स टैक्स जीएसटी। इसका इनपुट भी आप ले सकते हैं, ये आप इमीडिएटली भरेंगे और उसी मंथ में उसी मोमेंट पे 20 सेकंड के बाद आप इसको इनपुट ले सकते हैं। 20 सेकंड के अंदर अंदर आप इसको इनपुट ले सकते हैं। एलयूटी अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, आप पोर्टल पे जाइए, आप जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करिए अपनी आईडी से और वहां पे ही आपको एलयूटी का लिंक मिल जाएगा। वहां ऑनलाइन ही आपको एक फॉर्म भरना है, इमीडिएटली आप अप्लाई कर सकते हैं एलयूटी। एलयूटी आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, कभी भी पूरे साल में। पर जब आप रेगुलर जीएसटी में हैं तो सजेशन ये है कि आप बिफोर अप्रैल नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर लें। सर्च मेरा एक सजेशन रहेगा कि अगर ये जो
क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप रिपीट करें तो आपको रिकॉर्डिंग में क्वेश्चंस का रेफरेंस मिल जाएगा। आरसीएम के अंदर आप एक चीज और सबसे मैं मेन बताना चाहूंगा, आप काफी लोग गोडैडी से डोमेन खरीदते होंगे, और गोडैडी में आप अपना जीएसटी नंबर डाल देते हैं। उसके बाद गोडैडी आपको जीएसटी चार्ज नहीं करता है, राइट? कितने लोग यहाँ पे अवेल करते हैं गोडैडी में अपना जीएसटी नंबर डाल के जीएसटी फिर नहीं भरना पड़ता? आप लोगों के लिए मैं बता दूं, जितने भी लोग गोडैडी में जीएसटी नंबर डाल रहे हैं और फिर उस केस में बायर को जीएसटी पे करना है, आपको गोडैडी की परचेज पे जीएसटी पे करना है। मैं अब आपको रूल बता देता हूँ। यस, गोडैडी और डिजिटल ओशन, ये कुछ कंपनियां हैं जो इंडिया में ओआईडीआर प्रोवाइडर के हिसाब से जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं। ये क्या है रूल कि कुछ फॉरेन कंपनियां जिनकी इंडिया में प्रेजेंस है सॉफ्टवेयर सर्विसेज के लिए, वो इंडिया में ओआईडीआर प्रोवाइडर के हिसाब से रजिस्टर करती हैं। उनके लिए रूल ये है कि अगर वो B2C में डील कर रही हैं तो उनको जीएसटी चार्ज करना है और भर देना है गवर्नमेंट को। अगर आप जीएसटी नंबर गोडैडी को नहीं देते हैं तो गोडैडी आपको चार्ज करता है। B2B ट्रांजैक्शन में, क्योंकि वो फॉरेन कंपनीज हैं, B2B जैसे ही आप अपना जीएसटी नंबर डालेंगे तो वो गोडैडी की लायबिलिटी नहीं है जीएसटी चार्ज करना, वो आपके ऊपर आ गया, बायर के ऊपर आ गया अंडर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, वही आरसीएम वाला जो हमारा पहले वाला रूल है। ठीक है, तो आप जब भी आप गोडैडी का डिजिटल ओशन का बिल देखेंगे उसके ऊपर उनका एड्रेस यूएस का लिखा हुआ है। जैसे ही आपने अपना जीएसटी नंबर उधर डाला वो आपको जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, बिकॉज B2B हो गया, बिजनेस टू बिजनेस हो गया। उस मोमेंट पे आपको अपनी परचेज पे जीएसटी भरना है। अगेन वो मैंडेटरी है। फेसबुक एड ड्रॉप शिपिंग के लिए आपका जो पूरा बिजनेस है, राजुल आप मेरे से पर्सनल लेवल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आपका बिजनेस स्ट्रक्चर कहाँ पे हो रहा है, पेमेंट कहाँ पे आ रही है। अगर इंडिया में पेमेंट आ रही है, इंडिया से आप आपके फेसबुक एक्सपेंस कवर कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अक्षय, ये डिस्काउंट नहीं है, मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये डिस्काउंट नहीं है। आपको गोडैडी की परचेज में पे करना है। आपके फादर की फर्म से अगर आपने जीएसटी नंबर उधर डाल दिया है या तो उसे रिमूव करिए। Sir, do one thing. Whenever you take up a question, just say the name of that person and whoever the question is asking, just repeat that question so that people can know which the question is being addressed right now. Sure. अभी मेरे पीछे के क्वेश्चन जा चुके हैं, so people can repeat or you can ask me. Yes. Okay, no issue. I guess the question about how to show the expenses of Facebook ads in Indian dropshipping while paying income tax, is that covered? No, उसी के लिए मैं बता रहा था कि if you are see any expense related to business you are doing, उसमें आपको कुछ भी इश्यू नहीं है। आपने फेसबुक को पे किया है, आप उसको सिंपली एक्सपेंस में बुक करेंगे उसमें, और आपका ड्रॉप शिपिंग की बिलिंग आप इंडिया से ही कर रहे हैं, उसी में आप सामने सीधा उसको एक्सपेंस में डालेंगे। उसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, सिंपली उसको एक्सपेंस में डालना है। पर मैं अगेन वही रिपीट करूंगा, जीएसटी का बहुत ख्याल रखिए इस चीज में, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रबल इनकम टैक्स में उतनी नहीं आएगी जितनी आपको जीएसटी में आने वाली है। जीएसटी नया रिजीम है और ओवर द पीरियड ऑडिट्स बढ़ेंगी यहाँ पे। अगर फेसबुक में आपका यूएस अकाउंट है तो बेटर है उसको इंडिया अकाउंट में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आपकी पूरी बिलिंग इंडिया से हो रही है, वो आपको जीएसटी लगा के देंगे फेसबुक इंडिया से, आप जीएसटी इनपुट लीजिए। सेम वे में गूगल का भी इंडिया अकाउंट यूज करिए, उसका जीएसटी इनपुट लीजिए। इसमें एक चीज और आ जाती है, जब आप फॉरेन कंपनी को पे कर रहे हैं, वहां पे एक इक्वलाइजेशन लेवी भी आ जाती है जब आप एड्स का पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप फेसबुक को एक स्पेसिफिक अमाउंट से ऊपर, फेसबुक यूएसए को या गूगल सिंगापुर को या किसी भी कंपनी को पे कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, सो देयर इज अ 6% इक्वलाइजेशन लेवी, वो और आपके ऊपर आ जाएगा, प्लस जीएसटी का हाई है। मेरा उसमें सिंपल सजेशन रहेगा कि इंडियन कंपनी से ही डील करें। फेसबुक इंडिया से अकाउंट रखें और गूगल इंडिया से अकाउंट रखें। अमन, आपने पूछा कि यूएस कंपनी खोलना बेटर नहीं है जब इंडिया में जीएसटी भी देना है, इक्वलाइजेशन लेवी भी। अमन, यूएस कंपनी खोलने के अपने हेडेक हैं। अगर आप सेल यूएस में कर रहे हैं तो मैं कहूंगा आप करिए यूएस कंपनी, पर अगर आपकी सेल इंडिया में हो रही है तो आपको एनी हाउ जीएसटी कंप्लाई करना है। अगर आप यूएस कंपनी, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आपका 3-4 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस हो रहा है, इफ इट इज मोर देन 3 to 4 करोड़,
तब आप सोचिए कि यूएस में कंपनी खोलें। यूएस में कंपनी खोलते टाइम भी कुछ चीजों का आप ध्यान रखें कि यहाँ पे, बिकॉज आप इंडियन रेजिडेंट हो, तो आपको कुछ डिक्लेरेशन आपके आरबीआई में भी होते हैं, कुछ बैंक में भी होते हैं। बैंकों में जब आपने सेविंग अकाउंट खोला है तो आपने एक फाटका डिक्लेरेशन दिया जिसमें आपने डिक्लेयर किया आपका फॉरेन में कुछ भी अकाउंट नहीं है। वो डिक्लेरेशंस आपको वापस लेने होंगे सब बैंकों से। सो कुछ नॉर्म्स हैं, उसको आपके सीए से कंसल्ट करके फॉलो करें। नितिन, यूएस एफबी अकाउंट मैं इसलिए नितिन ने पूछा है कि यूएस और इंडिया में क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। इंडिया अकाउंट आप यूज करते हैं, आपकी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बिलिंग है, वो जीएसटी आपको चार्ज करेंगे, ठीक है। अगर आप एफबी यूएसए से बिल ले रहे हैं तो फर्स्ट आपको आपकी परचेज के ऊपर जीएसटी भरना है, जो मैंने अभी आपको बताया, परचेज के ऊपर आपको जीएसटी भरना ही है, वहां पे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा। उसके ऊपर आपकी एक और लाइबिलिटी आ जाती है, वो है इक्वलाइजेशन लेवी की। व्हेन यू आर पेइंग टू एफबी यूएसए और गूगल यूएसए, सो उस मोमेंट पे आपको इक्वलाइजेशन लेवी भी भरनी है एफबी के नाम से, तो वो आपके ऊपर एडिशनल लाइबिलिटी आ जाएगी इंडिया से आप करेंगे। राजू, फेसबुक आपको इनवॉइसेस देता है, आप फेसबुक के अकाउंट में जाएंगे, वहां पे आपको सारी इनवॉइसेस मिल जाएंगी। बैंक से गया है वो आपका प्रूफ ऑफ पेमेंट है, आपकी सारी इनवॉइसेस परचेज की, फेसबुक की, गूगल एड की, डोमेन्स की, होस्टिंग की, सब आपके पास एक सॉफ्ट कॉपी में रिकॉर्ड में रखिए। मैं आपको इसमें छोटा सा मेरा मेथड बता देता हूँ, व्हाट आई डू। मैं क्या करता हूँ कि हर साल का मेरा एक फोल्डर बना देता हूँ। जैसे अभी 2021 है, फाइनेंशियल ईयर 2021 है, उस एक फोल्डर बना देता हूँ। हर महीने की जितनी भी इनवॉइसेस आती है मैं वो उसमें डालते जाता हूँ और वो पुटअप करते जाता हूँ। रजुल, पुराना है उसका, आपने पूछा कि पुरानी इनवॉइसेस अब आपके पास नहीं है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता, बैंक से दिखा सकते हैं। वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर ऑफिसर इंसिस्ट करता है आपको एक्सपेंस दिखाने के लिए, इनवॉइसेस के लिए, आप फेसबुक सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे को मैसेज करिएगा, आई विल टेल यू कि फेसबुक बिलिंग टीम को आप कांटेक्ट करके अपनी इनवॉइसेस मांग सकते हैं, आपकी चाहे आईडी बैन हो गई हो। यहाँ पे फेसबुक के लिए, गूगल के लिए, मैं ये सब चीजों के लिए आपको एक सजेशन और देना चाहूंगा कि आपके जितने भी एड अकाउंट हैं उनको बिजनेस मैनेजर में 2 से 3 आईडी से लिंक करके रखिए कभी भी। तो एक आईडी अगर डिसेबल भी होती है तो एटलीस्ट यू कैन एक्सेस योर स्टेटमेंट्स एंड एवरीथिंग। एंड जितने भी आपके अकाउंट्स हैं जो बिलिंग आ रही है उनकी कॉपी इमीडिएटली आपकी मशीन में जरूर डाउनलोड कर लें, सॉफ्ट कॉपी इमीडिएटली हर महीने, ठीक है। नितिन, आपने पूछा इक्वलाइजेशन लेवी इनपुट क्रेडिट मिलती है? नहीं, इक्वलाइजेशन लेवी एक टाइप का टैक्स है, ये जीएसटी नहीं है, ये इनकम टैक्स के अंडर में आता है, इसमें कुछ भी इनपुट नहीं मिलता। इसलिए मैंने बोला अगर आप इंडियन हैं तो बेटर ये है कि इंडियन फेसबुक अकाउंट रखें। अमन ने, जॉय ने पूछा है कि इफ यू डू 3-4 करोड़ रेवेन्यू और प्रॉफिट फॉर यूएस कंपनी, इसके लिए कि 3 से 4 करोड़ का टर्नओवर कम से कम अगर आप करते हैं, वो भी आउट ऑफ इंडिया का टर्नओवर है। इफ योर टर्नओवर इज इन इंडिया देन देयर इज नो यूज ऑफ गोइंग टू अ फॉरेन कंपनी, बिकॉज आपके ऊपर वैसे ही सारे लॉ इंडिया के अप्लाई हो रहे हैं। प्रीतम आस्क मी अबाउट द GoDaddy जीएसटी थिंग कि व्हाट इज द प्रोसेस। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, व्हेन GoDaddy in India registered as OIDR provider, foreign company registered in India for GST, उनके लिए नॉर्म ये है, they have 2 category, one is B2C business to consumer, one is B2B business to business। उनको सिर्फ B2C कस्टमर का जीएसटी चार्ज करना है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भरना है। इन केस ऑफ B2B कस्टमर वो हो गया जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है डिफॉल्ट डेफिनेशंस के हिसाब से। तो जैसे ही आपने अपना जीएसटी नंबर उधर डाला, आप B2B कस्टमर हो गए। B2B कस्टमर के केस में जो भी परचेज है उसका जीएसटी बायर को पे करना है, जिसका जीएसटी नंबर है उसको पे करना है। तो आपने सपोज GoDaddy से 50,000 के डोमेन खरीदे अप्रैल मंथ में, तो मई मंथ के रिटर्न में अंडर आरसीएम ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज 9,000 का जीएसटी आपको पे करना है।
उस जीएसटी का आपको इमीडिएटली सेट ऑफ मिल जाएगा। आई होप प्रीतम दिस क्लेरिफाइज यू। सेकेंडली है जीएसटी रिफंड। जीएसटी रिफंड के लिए पूछ रहा है, तो जीएसटी रिफंड का पहला रूल क्या है कि आपकी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैं तो ही आपको जीएसटी रिफंड अप्लाई होता है। बिफोर दैट मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि जब भी आपके फॉरेन से पैसे आ रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट होता है FIRC, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट, वो आपको जरूर कलेक्ट करना है। मेरे ख्याल से यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का पैसा पेपाल से आता है। Yes. सो पेपाल के केस में सिटी बैंक से आपको आपका FIRC सर्टिफिकेट मिलेगा। सिटी बैंक 100 रुपए पर सर्टिफिकेट चार्ज करता है। पियोनियर के केस में पियोनियर आपको डायरेक्टली FIRC सर्टिफिकेट देता है। सिटी बैंक के केस में जब पेपाल से पेमेंट आ रहा है, मेरा सजेशन ये है कि उनका मैक्सिमम लिमिट है 2000 रुपीज। मतलब 20 अगर सर्टिफिकेट है तो 2000, अगर 20 से ज्यादा सर्टिफिकेट आप एक साथ में मंगा रहे हैं तो 2000 रुपए ही चार्ज करेंगे प्लस जीएसटी। उस केस में मेरा ये सजेशन, जैसे हम लोग क्या करते हैं पूरे एक साल के पेपाल से एक साथ में मंगाते हैं FIRC सर्टिफिकेट, तो आपके 100-200 जितने भी होंगे FIRC सर्टिफिकेट वो 2000 प्लस जीएसटी में आपको मिल जाएंगे सिटी बैंक से। पेयोनियर है या आपका बैंक HDFC में आ रहा है, ICICI में आ रहा है, स्टेट बैंक में आ रहा है, ट्रांसफर वाइज में है, इन सब में आपको आपके बैंक से ये मिलेगा FIRC सर्टिफिकेट। ट्रांसफर वाइज के केस के अंदर देयर आर 2 बैंक्स इन इंडिया, एक HDFC है और एक येस बैंक है। आपको जब पेमेंट आ रही है आप चेक करिए आपको येस बैंक से आया है कि HDFC बैंक से आया है। सहर्ष, ये मैं कुछ आपको लिंक शेयर कर दूंगा ट्रांसफर वाइज के और सिटी बैंक के, जहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन है उनका कि आपको FIRC कैसे अप्लाई करना है। Sure, sure. तो जब आपको एक्सपोर्ट इनकम आ रही है तो आपको FIRC चाहिए, मैंडेटरी चाहिए। इन FIRC के बेस पे ही आप GST रिफंड अप्लाई कर सकते हैं। GST रिफंड सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट पे मिलता है। आपके ऊपर पास में लोकल में बहुत सारा GST है और लोकल की ही सेल है तो उसका रिफंड नहीं आता है। रिफंड सिर्फ अगर आपने एक्सपोर्ट किया है तो ही मिलेगा आपको, ठीक है। सो एक्सपोर्ट किया है, आपको पोर्टल के ऊपर ही एक अनदर फॉर्म होता है GST का, जहाँ पे आपको अप्लाई करना है। आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, स्पेसिफिक पीरियड के लिए वो फॉर्म भरना है। उसके साथ में आपको आपके FIRCs अटैच करने हैं, इनवॉइसेस की डिटेल अटैच करनी है, वो आप भरेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट 45 to 90 डेज में आपका रिफंड आ जाएगा। कुछ डिस्क्रिपेंसी होंगी तो वो उधर ही नोटिफाई आपको कर देंगे कि ये डिस्क्रिपेंसी है, वो आप वापस से प्रोड्यूस करिए तो आपका रिफंड प्रोसेस होगा। ये GST रिफंड को लेके है। Yes, sir. There is one question from on a Facebook Live. So the question is from Bipin. He is asking what if the bill is not on his company name? Can he still claim a GST rebate? Can you repeat again? Yeah. The question is regarding Facebook ads when the bill is not on the name of a company. So can a person can claim a GST rebate in that case? No. अगर GST बिल आपकी कंपनी के नाम पे नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आपको इनपुट क्रेडिट आपको लेना होता है। यहाँ पे ये आप RCM में भर रहे हैं या उन्होंने ऑलरेडी फेसबुक इंडिया से इनवॉइस की है? I think ये Facebook इंडिया ही है because the person फेसबुक इंडिया है तो दे हैव टू पुट देयर GST नंबर देयर। अगर उन्होंने अपना GST नंबर नहीं, क्योंकि इसमें क्लेम नहीं होता है। आप जब भी इंडियन वेंडर से या कहीं से भी परचेज करते हैं आपको आपका GST नंबर डालना होता है। लाइक आप मेरी साइट पे आए, मेरे यहाँ से डोमेन बुक कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको एक फॉर्म में अपना GST नंबर डालना है। आप वो GST नंबर उधर डालेंगे तभी आपको इनपुट मिलेगा, एल्सवाइज वो इनपुट नहीं मिलेगा। अगर आपने GST नंबर मेरे यहाँ पे नहीं डाला तो उसका इनपुट आपको नहीं मिलेगा। सो अगर इन्होंने एज ए इंडिविजुअल वहां पे फेसबुक एड में लिया, वहां पे अपना GST नंबर नहीं डाला है तो वो इनपुट मिलेगा ही नहीं। क्योंकि इनपुट जब वेंडर आपका GST चार्ज कर रहा है तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आपको इनपुट लेना है। वो वेंडर अपलोड करता है GST पोर्टल पे कि इस GST नंबर को मैंने इतने रुपए का माल बेचा है। जी, राइट। आपको Vinesh, sorry for stopping you. So in this case, like what if the person has a multiple Facebook ad accounts and business manager, he is using different company names, but still he has
a same GST number applied across all the business managers. So right, in that case, he can still claim the input credit, right? Yes, yes, yes. He may have 100 accounts in Facebook. Okay, if he have put up the GST number there, अगर उसने उधर GST number डाल दिया है, ठीक है ना, और फेसबुक इंडिया है, तो उसको अपने आप ही मंथ एंड में वो दिखने लग जाएगा. Right. मंथ एंड में वो दिखने लग जाएगा. What I will do, I will try to log in into my GST portal और कैमरा ऑन करके आपको मैं दिखा भी देता हूँ कैसे इनपुट आता है. ठीक है, वो मैं अभी आगे प्रोसेस में आपको दिखाता हूँ. और अगर आप फेसबुक यूएसए से बिल कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप फेसबुक यूएसए से बिल कर रहे हैं, उस केस में तो आपको भरना ही आरसीएम में, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में. और वो मैंडेटरी है. मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप बाहर से परचेज कर रहे हैं बिजनेस पर्पस के लिए, आपको आपकी परचेज पे, हर परचेज के ऊपर जीएसटी भरना है. और इस चीज को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि सबसे ट्रबलसम यही है. सपोज आप ये चीज नहीं कर रहे, अभी आप सोचेंगे हमारा काम छोटा है, 2-4-5 लाख की परचेज कर रहे हैं, होगा क्या 2025, 26, 27 में जाके डिपार्टमेंट का नोटिस आएगा कि आपने परचेज की है फॉरेन से, किस चीज के लिए की है, बिजनेस के लिए की है, उसकी डिटेल दीजिए. डिटेल कब से दीजिए? 2017 जुलाई से लेकर टिल डेट में आपने जितनी भी फॉरेन की परचेज की है और क्यों की है, वो हमें डिटेल दीजिए अमाउंट के साथ. फिर उतने सारे सालों का टैक्स, ठीक है, वो सारे सालों का टैक्स और पेनल्टी और इंटरेस्ट. अब जब आप लेट उसको भरेंगे तो उसका सेट ऑफ भी नहीं मिलता है. अभी आपको इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा आपके आरसीएम का, पर उस टाइम पे आपको इनपुट क्रेडिट कुछ नहीं होता है. जब गवर्नमेंट डिमांड निकालती है कोई भी इनपुट क्रेडिट, ये कुछ भी नहीं मिलता है, वो आपका पूरा पैसा गया. और इसमें आपके पास कोई एस्केप पॉइंट नहीं है, क्योंकि आपके बैंक स्टेटमेंट, आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट सामने बोल रहे हैं. आपके पास कोई भी उसमें झूठ बोलने की जगह नहीं है. जॉय ने पूछा है कि एफआईआरसी मैंने खुद ने अभी मेरे 2014 से लेके टिल डेट के मंगाए हैं, ठीक है ना. पेपाल से ही मैंने मंगाए हैं 2014 से लेके टिल डेट के, अभी 2 महीने पहले ही मैंने मंगाए हैं, ठीक है. तो वो कभी भी आप मंगा सकते हैं. अगर आप इंडिया से बिल कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग के लिए पूछा है आदित्य ने कि इंडिया से बाहर सामान बेच रहे हैं. यस आदित्य, अगर आपने इंडिया से बाहर माल बेचा है तो ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो गया. इन दैट वट एवर यू आर डूइंग एक्सपोर्ट, उसके सामने अगर आपके पास इनपुट क्रेडिट है, उसका आप रिफंड मांग सकते हैं. वो चाहे फेसबुक एड का हो या आपने आरसीएम में भरा हो या किसी भी टाइप से भरा हो, एक्सपोर्ट के सामने वो पूरा पैसा आप रिफंड मांग सकते हैं. यहाँ पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, ये एक पेपर वर्क है. अगर आपका पूरा काम एक्सपोर्ट का है, ठीक है ना, तो ये एक पेपर वर्क है. सहर्ष, ये थोड़ा नोट डाउन रखिएगा आप भी. अगर आपका पूरा काम एक्सपोर्ट का है, सपोज आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, आप डोमेन्स बेच रहे हैं आउट ऑफ इंडिया में, या कोई भी इस टाइप की एक्टिविटी कर रहे हैं, आपका पूरा काम एक्सपोर्ट का है, पर बिकॉज आप इंडियन हो, इंडियन बैंक अकाउंट यूज कर रहे हो, आपकी जितनी भी परचेज है उसके ऊपर आपको जीएसटी भरना है, फिर उसको रिफंड ले लेना है. टेक्निकली आपकी जेब से कुछ नहीं गया, वो जीएसटी आपको वापस आ जाएगा. अगर आपने इंडियन वेंडर से परचेज किया है तो आप वो पूरा जीएसटी रिफंड मांग लेंगे. फॉरेन वेंडर से परचेज किया तो आपको भरना है और फिर वापस ले लेना है, ठीक है, अगर आप पूरा एक्सपोर्ट कर रहे हैं. पर अगर आप ये नहीं करते और फ्यूचर में पकड़े जाते हैं तो ये पूरा पैसा भरना पड़ेगा और इसका कोई रिफंड नहीं होगा उस टाइम पे. इसलिए अभी से ये कंप्लायंस करेंगे तो बेटर है. आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा, उसके दूसरे फायदे भी बहुत हैं. रिफंड कितने टाइम में आता है, अमन ने पूछा है. रिफंड का कोई टाइमलाइन नहीं है. ये कई बार जब शुरू हुआ था तो 2-2 साल तक भी नहीं आया था लोगों का रिफंड, और इन दिनों में 45 to 90 डेज में आ रहा है, ठीक है. तो रिफंड की कोई टाइमलाइन नहीं है. अमन ने ही फिर पूछा है, इफ वी कैन यूज अवर सेविंग बैंक अकाउंट फॉर परचेज ऑफ डोमेन्स इन इंडिया एंड इज सोल्ड आउट ऑफ इंडिया. यस अमन, आप आपका सेविंग अकाउंट यूज कर सकते हैं. टैक्स कंप्लायंस आपको पूरे रखने हैं आपके. जैसे अगर आप परचेज आउट ऑफ इंडिया से कर रहे हैं तो जीएसटी में रजिस्टर करना है आपको और जीएसटी भरना है आरसीएम में. सेल बाहर कर रहे हैं तो जीरो रेटेड आपकी इनवॉइसिंग होगी, उसमें आपको कुछ भी इश्यू है नहीं. देबाशीष आस्क कि आई एम फ्रीलांसिंग, वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और 1 करोड़ के आसपास इनकम है.
देवाशीष, आप बेटर है कि मेरे को बाद में कांटेक्ट कर ले, At because least, guys, do make sure if you are earning at least 1 CR, you do hire some CA or have someone of your own. मैं एक सिंपल चीज बोलूंगा सर, जोड़ना चाहूंगा, अगर आप 10-15 लाख के ऊपर रेवेन्यू कर रहे हैं, 10 से 15 लाख के ऊपर रेवेन्यू कर रहे हैं, तो टैक्स सिस्टम को अडेप्ट करिए, इसको मजाक मत लीजिए। Agree. 1 करोड़ तक भी नहीं पहुंचूंगा, 10 से 15 लाख। और अगर आपकी बाहर की परचेज 50,000 लाख रुपए से ऊपर की है एनुअली, आउट ऑफ इंडिया की, चाहे गोडैडी से खरीद रहे हो, चाहे इन्वेंटो से खरीद रहे हो, चाहे आप फेसबुक यूएसए से ले रहे हो, गूगल यूएसए से ले रहे हो, इन दैट सिनेरियो जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, आईटीआर फाइलिंग भी मैंडेटरी है। वरुण आस्क कि ही इज हैविंग 7-8 लाख की रिसिप्ट्स। वरुण, if your purchase are more than like 50,000 or 1 lakh rupees, my recommendation is कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। रिसिप्ट पर मंथ आपने बोला शायद, नहीं, करंट इज ओनली 7-8 लाख। ये पर मंथ है आपकी या पर ईयर है, ये बता दीजिए। नितिन, इफ यू आर पेइंग एम्प्लॉइज आउटसाइड इंडिया, उसके कुछ अलग नॉर्म्स हैं, ये आपको एक प्रॉपर सीए से कंसल्ट करना पड़ेगा। इफ यू आर पेइंग as a salary to them or as a consultancy to them, so दोनों के अलग अलग नॉर्म्स हैं। इसका आपको प्रॉपर पेपर वर्क करना पड़ेगा पेमेंट्स के लिए। और अगर एज ए कंसल्टेंसी दे रहे हैं तो इजी है, उसमें आपको आरसीएम में जीएसटी भरना है। एज ए कंसल्टेंसी दे रहे हैं, एज ए सैलरी दे रहे हैं तो उसकी अलग डिक्लेरेशन है। अमन, यू हैव आस्क्ड कि इफ ड्रॉप शिपिंग इज गोइंग डायरेक्टली फ्रॉम चाइना टू यूएसए, this issue is with many of people, and I believe SARS is doing very well in that. The main concern is from where you are doing the billing. What is your billing address and where the payments are coming, and those accounts are linked where? ये जब तक क्लियरिटी नहीं आएगी, आपके अकाउंट कहाँ पे हैं, पेमेंट कहाँ पे आ रही है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बिना इस चीज का आंसर नहीं हो सकता। अब मैं इसके अगले पार्ट में आऊंगा, जो काफी लोग पूछने भी लग गए हैं कि फर्म करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, मेरा पर्सनल ओपिनियन है पार्टनरशिप फर्म। सो हमारे इंडिया में 4 टाइप की स्ट्रक्चर होती है: प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी एंड प्राइवेट लिमिटेड। सोल प्रोप्राइटरशिप मुझे पसंद नहीं आती, उसका मैं आपको कारण बता देता हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप पे आप जब टीडीएस या जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं, आपका कंपनी का नाम कुछ भी हो, उसमें नाम आपका आता है, पर्सनल नाम आता है, जो मुझे लगता है कि लॉन्गर रन में हमें अच्छा नहीं लगता। जैसे अभी सपोज आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है और मैंने आपसे परचेज किया, तो आप जीएसटी बिल अगर मुझे देंगे, तो जब मैं जीएसटी पोर्टल पे जाऊंगा तो वहां पे आपका इंडिविजुअल का नाम आएगा, आपकी फर्म का नाम नहीं आएगा। तो वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। फिर उस केस में मेरे पास 3 ऑप्शन बचते हैं: पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी एंड प्राइवेट लिमिटेड। एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड में कंप्लायंस बहुत ज्यादा है। अगर आपको कोई फंडिंग में नहीं जाना है या कोई मल्टीपल पार्टनर्स नहीं है, सो उस केस में मैं सबसे बेस्ट ऑप्शन मानता हूँ पार्टनरशिप फर्म। उसके कंप्लायंस उतने हार्ड नहीं है, नियर टू प्रोप्राइटरशिप ही है। उसका सेपरेट पैन कार्ड होता है, सेपरेट जीएसटी नंबर होता है, सो आपकी ब्रांडिंग भी सेव होती है। मैं खुद मेरी पार्टनरशिप फर्म चलाता हूँ, तो जब किसी को भी आप बिल देते हैं, वो जीएसटी पोर्टल पे या इनकम टैक्स पोर्टल में जब उसको इनपुट दिखता है, तो वो उस फर्म के नाम पे ही दिखता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अगर आप काफी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, मेरे व्यू में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तब जाना चाहिए जब आप रफली 1 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, तो उसके कंप्लायंस बहुत हैं। और ओपीसी कोई काम की नहीं है, इट इज नॉट सजेस्टेड। 1% कंपनी इज नॉट एट ऑल सजेस्टेड, क्योंकि आप टर्नओवर बहुत फास्ट क्रॉस, आप खुद को लिमिट कर लेंगे 1% कंपनी के। उससे बेटर तो आप पार्टनरशिप फर्म कर लें। 1% कंपनी के कंप्लायंस और भी ज्यादा हैं, तो उससे बेस्ट है पार्टनरशिप फर्म। मेरे व्यू में सबसे बेस्ट होती है। प्राइवेट लिमिटेड मेरे को इसके लिए थोड़ा सा लगता है कि अगर मुझे खुद ही काम करना है, तो फिर प्राइवेट लिमिटेड के कंप्लायंस में क्यों पालूं? मुझे किसी से कोई बैंक से लोन नहीं उठाना है, कोई फंडिंग नहीं लेनी है,
तो अगर आपको फंडिंग या उस रेंज में जाना है तो प्राइवेट लिमिटेड ही करें। अमन ने जो पूछा है, अमन, इंडियन अगर बैंक अकाउंट यूएस है तो वो यूएस का स्ट्रक्चर हो गया। आदमी इंडियन हो वो ठीक है, वो कंपनी यूएस की हो गई, वहां के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, वो यूएस कंपनी है। बट अगर मैनेजमेंट इंडियन है, इंडिया में आप डिक्लेरेशन जरूर रखें आरबीआई में और रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज में कि आपकी फॉरेन में कंपनी है। पुनीत जैन आस्क कि एलएलपी द पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी, हाउएवर इन केस ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। पुनीत, मैं सबसे पहले आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि देयर इज नथिंग लाइक लिमिटेड लायबिलिटी इन प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड और एलएलपी। ये मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको मैं बताता हूँ कि ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है कि लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी की क्या चीज होती है? सपोज आपने बैंक से लोन लिया है, एलएलपी है, उस सिनेरियो में भी आपका घर बिक जाएगा। अगर आपकी एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड है, आप बिजनेस में फेल कर जाते हैं, आपने लोन ले रखा है, उस केस में भी आपका घर बिक जाएगा। अगर गवर्नमेंट का कोई भी ड्यूज है आपके ऊपर, कोई भी आता है, जैसे मैंने बोला जीएसटी वगैरह, ये प्रॉपर कंप्लाई नहीं कर रहे, आगे जाके नोटिसेज आते हैं और आपको भरना आता है, उस केस में भी पार्टनर्स का और डायरेक्टर्स का घर तक बेचा जा सकता है टू कवर दैट मनी। तो मेरे ये समझ में नहीं आया कि लिमिटेड लायबिलिटी कहाँ पे हुई। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी खाली एक सिनेरियो में होती है कि अगर आपका कुछ बाहर का कोई केस होता है, उस केस में आप लायबिलिटी से बच जाते हैं, इंडिविजुअल लायबिलिटी से। वो तभी बचते हैं जब आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो। एल्सवाइज एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। विजय माल्या की कंपनी प्राइवेट लिमिटेड थी और पब्लिक लिमिटेड थी, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से हम उसको क्यों उठा के लेके आ रहे हैं फॉरेन से, कि उसकी पेमेंट उससे कैसे उठाना है। इसके लिए ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि कोई लिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की या डायरेक्टर्स की, वो सिर्फ बोलने की बातें होती हैं। अमित आस्क की ही हैव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अमित, if you feel to close the private limited company, why to go for the LLP also? Go for partnership firm. ठीक है, उसमें आपको LLP और प्राइवेट लिमिटेड में स्ट्रक्चर सिमिलर ही है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, आपका जो कंप्लायंस लेवल है वो उतना ही है। अगर आपको लग रहा है आगे बिजनेस वापस रिवाइव होना है तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कंटिन्यू रखिए, दूसरे बिजनेस भी आप उसमें कर सकते हैं। It is better to explore more business and do into the same company if you are already running a company, क्योंकि क्लोज करने का भी अपना पूरा एक प्रोसेस है लंबा कंपनी को। Now Pritam ask if I get affiliate commission from foreign companies directly to my bank account. I have already submit inward remittance certificate to bank. Anything else? प्रीतम, इनवर्ड रिमिटेंस सर्टिफिकेट आपको बैंक से कलेक्ट करना है। जब आपको फॉरेन में पैसा आ रहा है फॉरेन से, आपको वो कलेक्ट करना है। If you are receiving more than 20 लाख रुपीस पर एनम, आपको जीएसटी में रजिस्टर करना है और इनकम टैक्स जो भरना है वो है ही है। बैंक से आपको FIRC सर्टिफिकेट जरूर कलेक्ट करके अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके रख लेना है। ठीक है, ये कंपनी स्ट्रक्चर पे आ गए हम लोग। उसके अलावा उद्देश्य का क्वेश्चन है, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग मंथली ट्रांजैक्शन एंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, what factors or point I must take care or follow so that after an year I hold really strong documents so that I can get loans or advantage based on my documents. Uddeshya, in this scenario, when you are going for the loan, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ये सब एग्जामिन की जाती है। इफ यू आर होल्डिंग एनी क्रेडिट कार्ड्स, मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा, नेवर एवर डिले योर क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स। सेकेंडली, आपका टर्नओवर, योर टर्नओवर शुड बी सस्टेन्ड, उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं होने चाहिए। स्ट्रीमलाइन ग्रोथ होनी चाहिए आपके टर्नओवर्स में एज वेल एज प्रॉफिट्स में। ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं, आपके पर्सनल फाइल, आपकी कंपनी की फाइल में, ये सब आपका रेवेन्यू प्रॉपर वे में इंक्रीज कर रहा है, प्रॉफिट आपका इंक्रीज कर रहा है, और आपकी कोई भी जैसे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स और ये सब डिफॉल्ट नहीं है, तो ओवर द पीरियड यू विल क्रिएट अ गुड क्रेडिट रैंकिंग, जिसके बेस पे आपको डिपेंड अपॉन योर एलिजिबिलिटी आप लोन्स ले सकते हैं। कंपनी स्ट्रक्चर में मैं यहाँ पे एक चीज और बोलूंगा, जब आप कुछ पॉइंट और हैं, आप चाहे
प्रोप्राइटरशिप फर्म भी रन कर रहे हो, अगर आपका 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है तो आपको ऑडिट करनी पड़ती है अकाउंट्स की। 1 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर पे यू हैव टू गो फॉर ऑडिट, टैक्स ऑडिट बोलते हैं, वो मैंडेटरी है। इफ यू आर डूइंग मोर देन 1 करोड़, वो आपको एक सीए से वो आपके सारे अकाउंट इन आउट चेक करेगा, वो चाहे आपकी प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे एलएलपी हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो। 1 करोड़ के ऊपर के रेवेन्यू के ऊपर आपको टैक्स ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। नंबर 2, 2 करोड़ के ऊपर के टर्नओवर के ऊपर आपको जीएसटी ऑडिट भी करवाना होता है। टैक्स ऑडिट 1 करोड़, अमित टैक्स ऑडिट 1 करोड़ के ऊपर है। Well, I guess Amit is asking company and individual. I guess in individual case you need to have audit done at 35 lakhs, right? नो, इंडिविजुअल के लिए 1 करोड़ बोल रहा हूँ मैं, प्रोप्राइटरशिप में 1 करोड़। Fine, fine. 1 करोड़ प्रोप्राइटरशिप में टैक्स ऑडिट इज मैंडेटरी। 35 लाख बहुत पहले था, मतलब आई बिलीव a few years back, now it is made to 1 करोड़। ओके, उसके नीचे है वैसे भी अगर 20 लाख से ऊपर आप जा रहे हैं तो आपको ये जीएसटी नंबर लेना ही है। सो बेसिक ऑडिट आपकी हो ही रही है उसके अंदर। इन्होंने एक आर्टिकल शेयर किया, मैं एक बार देख लेता हूँ, इन मीन टाइम में वो ओपन हो रहा है। मेन एक क्वेश्चन है यहाँ पे ऑन फेसबुक लाइव पे। सो नरेंद्र कुमार पूछ रहे हैं व्हेन जीएसटी नंबर गेट कैंसल एंड आल्सो द 90 days हैज पास्ड, आफ्टर हाउ मेनी डे टू रिट्रीव जीएसटी? आई डोंट नो व्हाट ही इज रेफरिंग एज टू हियर, माइट बी ही इज रेफरिंग अबाउट द रिफंड। समझ में नहीं आया मेरे को, इफ यू कैन। Yeah, I think basically he's asking for when the GST number is cancelled and the 90 days has passed, I guess his refund has been stuck possibly. So he's looking for returning the refund, something like that. That he need to consult with the CA proper way में, because GST number is cancelled, so he need to better consult with the CA. उसको local authority में जाके he need to speak with them कि क्या है और कैसे है। ये जो आर्टिकल है ये शायद हटा दिया गया है, क्या मेरे इसमें लोड नहीं हुआ है, क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स की डिफॉल्ट साइट खुल गई है उसकी जगह पे। मैं आपको रेफर करता हूं। सो द बेसिकली द आर्टिकल इज अबाउट गवर्नमेंट रेजेस द टर्नओवर थ्रेशोल्ड फॉर ऑडिट ऑफ एमएसएमई अकाउंट्स टू ₹5 crore. दिस इज व्हाट द आर्टिकल ही इज रेफरिंग टू। या दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो एमएसएमई के अलग नॉर्म्स हैं। सो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इनकम टैक्स और ये अपना जो जीएसटी के इनके नॉर्म अलग चलते हैं। एमएसएमई के लिए इस बजट में कुछ नॉर्म्स अलग चेंज किए हैं। जो 5 करोड़ का नॉर्म है उसके कुछ अलग क्राइटेरियाज हैं, ठीक है ना, उसके कुछ क्राइटेरियाज अलग हैं, वो इसमें फॉल नहीं होते हैं। जो जनरल रूल है वो ये है, 1 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर पे आपको ऑडिट करवानी है। जो 5 करोड़ वाला जो एमएसएमई वाला है उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं जो आप आपके सीए से डिस्कस करेंगे, वो बता देंगे। मेरा पर्सनल व्यू ये रहेगा, 1 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर पे ऑडिट पर्सनल लेवल पे भी करवानी जरूर चाहिए, सो दैट यू विल बी वेरी मच क्लियर व्हाट इज हैपनिंग इन योर बिजनेस। कहीं पे कुछ मिस्टेक्स तो नहीं हो रही हैं। अगर कोई मिस्टेक्स हो रही है, ऑडिट का पर्पस यही रहता है, जैसे अभी आप आरसीएम में जीएसटी नहीं भर रहे, सपोज मेरे एक फ्रेंड के साथ ये हुआ था, उनका 3 से 4 करोड़ का टर्नओवर था। जब उनकी ऑडिट हुई तो आरसीएम में जीएसटी भरना आया उनको। उन्होंने फॉरेन से सर्वर्स खरीदे थे, उनके करीब करीब 1 करोड़ रुपए की परचेज थी फॉरेन से। उन्होंने आरसीएम नहीं भरा था, उनको वो पॉकेट से भरना पड़ा। वो प्रीवियस ईयर का हो गया, बट इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स उन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया। तभी चीज पकड़ में आई जब वो उन्होंने ऑडिट करवाया। ऑडिटर ने इमीडिएटली बोला कि आपने परचेज पे जीएसटी नहीं भरा, जो भी आपने फॉरेन परचेज की है, और उसका फिर सेट ऑफ भी नहीं मिला उनको। सो ऑलमोस्ट लाइक 30 लाख रुपीज ही लॉस्ट, ठीक है। तो 1 करोड़ के ऊपर ऑडिट मैं पर्सनल वे में भी बोलूंगा आपको करवाना चाहिए, कि आपकी कोई भी गलती है वो मार्क होके निकल के आ जाएंगी। इसके साथ साथ में क्या होता है, जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करते हैं या एलएलपी करते हैं या पार्टनरशिप फर्म करते हैं, या आपका प्रोप्राइटरशिप का भी टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर चला जाता है, एक और टैक्स नॉर्म आपके ऊपर आ जाता है, वो है टीडीएस, डिडक्टेड ऑन सोर्स। टीडीएस क्या है? जैसे अब आप कुछ सर्विसेज ले रहे हैं, जैसे डोमेन खरीद रहे हैं, या आप गूगल को एडवर्टाइजमेंट्स का पे कर रहे हैं, या फेसबुक को एडवर्टाइजमेंट का पे कर रहे हैं, 30,000 से ज्यादा अगर आप उनको पे कर रहे हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है उनका। जैसे फेसबुक को एड का पे कर रहे हैं, फेसबुक इंडिया को, तो 2% टीडीएस आपको डिडक्ट करना है। इफ यू आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी, या पार्टनरशिप फर्म प्रोप्राइटरशिप फर्म में आपका 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, तो
आपको 10 नंबर लेना है। आपके जितने भी वेंडर्स हैं सॉफ्टवेयर सर्विस से रिलेटेड, अगर 30,000 रुपए से ज्यादा एनुअली आप उनको पे कर रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में आपको 2% से लेकर 10% तक उनका टीडीएस डिडक्ट करना है और रिमेनिंग अमाउंट उनको पे करनी है। और जो टीडीएस अमाउंट है वो गवर्नमेंट को पे करनी है। ये भी एक नॉर्म है। अगर आप टीडीएस नहीं करते हैं प्रॉपर फिलअप तो आपके जो एक्सपेंस है वो रिजेक्ट हो सकते हैं। सपोज आपने 1 करोड़ के एक्सपेंस किए और टीडीएस नहीं काटे हैं आपने, तो इनकम टैक्स ऑफिसर आपके एक्सपेंस को डिसअलाउ कर सकता है। उस केस में वो 1 करोड़ रुपए आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक मेरा डॉक्यूमेंट भी बनाया हुआ है छोटा सा, जो मैंने सर्च के साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, वो ग्रुप में भी आपके साथ शेयर कर देंगे। Yes. टीडीएस अगेन ऐसा पॉइंट है जो मोस्ट ऑफ द लोग मिस करते हैं। मेरा सबसे ज्यादा जोर जो रहेगा अपने इस पूरे सेशन में 2 ही चीजों पे रहेगा, एक टीडीएस, दूसरा आरसीएम और जीएसटी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में। मैक्सिमम लोग जो मैंने ऑब्जर्व किया है 80 to 90% हमारी इंडस्ट्री में इन दोनों ही चीजों को मिस आउट करते हैं। दोनों ही चीजें डेंजरस हैं आगे के लिए, बिकॉज यहाँ पे आपकी सारी ट्रांजेक्शन्स आपकी बुक्स में हो रही हैं, देना ही पड़ेगा वो चीज। अमन ने पूछा है कि ये टीडीएस, इक्वलाइजेशन, जीएसटी, ऑल दिस गोइंग टू ईट अप प्रॉफिट्स व्हेन ऑपरेटिंग अंडर इंडियन एंटिटी। अमन बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जितने भी चीजें हैं, इक्वलाइजेशन में लेवी मैं नहीं बोलूंगा, टीडीएस और जीएसटी ये दोनों ही चीज आप आपकी पॉकेट से नहीं पे कर रहे हैं। टीडीएस आपके वेंडर का सपोज 5 लाख रुपए का बिल है, आपको उस 5 लाख में से टीडीएस काटना है। जैसे अगर 10% टीडीएस है तो 4.5 लाख वेंडर को पे करना है, 50,000 गवर्नमेंट को पे करना है। आप जेब से आपकी कुछ भी पे नहीं कर रहे। जीएसटी के केस में भी अंडर आरसीएम आप पे कर रहे हैं और उसको सेट ऑफ ले रहे हैं या रिफंड ले रहे हैं, आपकी पॉकेट से कुछ भी नहीं जा रहा, आपकी पॉकेट से कुछ भी नहीं जा रहा। पर अगर आप यूएस कंपनी को एड का पेमेंट कर रहे हैं तो यस, उस कंडीशन में इक्वलाइजेशन लेवी आपकी पॉकेट से चली जाएगी। ठीक है, अगर आप यूएस एंटिटी खोलते हैं तो मैंने वही बोला कि आपका टर्नओवर उतना होना चाहिए, क्योंकि यूएस एंटिटी को मेंटेन करने के भी अपने कॉस्ट हैं, वहां पे भी अलग अलग टैक्सेस हैं। फेड के अंदर आपको रजिस्टर करना होता है, स्टेट के अंदर रजिस्टर करना होता है। अगर आप उधर टाइमिंगली फेड रिटर्न नहीं भरते हैं यूएस में तो उसकी बहुत ज्यादा पेनल्टीज हैं। नरेंद्र आस्क मी हाउ टू डिडक्ट टीडीएस ऑफ गूगल, practically how, because they release bill on basis of monthly ad displayed and we pay online. Narendra, I believe you pay via your credit card. उस केस में आपको क्या रहता है कि जो टीडीएस अमाउंट है आपको भर देना है। एवरी क्वार्टर आपको एक टीडीएस सर्टिफिकेट जनरेट करना होता है। वो टीडीएस सर्टिफिकेट आप गूगल की बिलिंग टीम को भेजेंगे तो आपको क्रेडिट दे देगी गूगल की टीम इमीडिएटली उस अमाउंट का। सपोज आपका एक मंथ में बिलिंग हुआ 2 लाख रुपए का, आपने 2% टीडीएस उनका भरा है 4,000 रुपए, हर 3 महीने तक आपने 4,000 भरा, 12,000 रुपए का टीडीएस सर्टिफिकेट नेक्स्ट क्वार्टर के बाद आप गूगल की बिलिंग टीम को भेजेंगे, वो आपको इमीडिएटली 12,000 रुपए का क्रेडिट दे देगी। अगर आप गूगल की अदर सर्विसेज यूज कर रहे हैं जैसे जी स्वीट के केस में, जैसे हम पार्टनर हैं जी स्वीट के, तो हमारे केस में क्या होता है, हम गूगल को काट के ही पे करते हैं, हम बैंक ट्रांसफर करते हैं। और अगर आपकी बड़ी पेमेंट्स है, सबको मैं ये सजेस्ट करूंगा, इफ यू आर पेइंग ह्यूज अमाउंट्स टू गूगल और फेसबुक, फेसबुक ऑप्शन नहीं देता है बट एटलीस्ट इन गूगल ऑप्ट फॉर बैंक ट्रांसफर। कार्ड से पे मत करिए, बैंक ट्रांसफर ऑप्ट करिए। और बैंक ट्रांसफर जब आप करते हैं आप पोस्टपेड बिलिंग में चले जाते हैं, पोस्टपेड बिलिंग में आप टीडीएस काट के ही उनको पे करिए। नितिन सेठी आस्क इफ वी कैन अवॉइड करेंसी कन्वर्जन चार्जेस एंड मार्कअप ऑन एवरी पेमेंट बैंक चार्जेस में। नितिन, निगोशिएट विद योर बैंक्स, निगोशिएट विद योर बैंक, सारे बैंक निगोशिएट करते हैं। इफ यू हैव गुड अमाउंट ऑफ बिजनेस विद योर बैंक, आपके अकाउंट्स उधर हैं, आप अच्छे से निगोशिएट कर सकते हैं। जैसे मेरा खुद का एचडीएफसी में अकाउंट है, मैंने 10 पैसे में निगोशिएट किया हुआ है, 10 पैसे में। जैसे आज अगर करेंसी का रेट 75 रुपीज है, अगर मुझे इनपुट आएगा, इनवर्ड आ रहा है, देन आई विल गेट 74.90। अगर फॉरेन में रिमिटेंस करूंगा तो 75.1 से करूंगा। सो ये आपको आपके बैंक से निगोशिएट करना है। सारे बैंक निगोशिएट करते हैं, ये आपकी
बैंक के साथ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना निगोशिएट हो पाएगा। अमन आस्क कि पहले मैं आदित्य के क्वेश्चंस का आंसर कर देता हूँ। इन इंटरनेशनल ट्रेड कैन वी गेट रिफंड ऑन जीएसटी फॉर शेड्यूल 3 एक्टिविटीज? आदित्य, ये मुझे चेक करना पड़ेगा कि व्हाट आर द शेड्यूल 3 एक्टिविटीज, उनका क्या नॉर्म्स हैं। आई एम नॉट मच क्लियर ऑन दोस थिंग्स। मैं आपको अपडेट करके चेक करके बता दूंगा। देन अमन का क्वेश्चन था कि अगर एफबी एड्स का 10 लाख का पे है तो उतने का ही इनवॉइस भेजते हैं। अमन, मैंने जैसे अभी बताया, अगर इंडिया का एफबी अकाउंट है आपका, ठीक है, तो आपको टीडीएस भर देना है। उसके बाद वो टीडीएस सर्टिफिकेट जब आप फेसबुक को भेजेंगे, फेसबुक की बिलिंग टीम को, उतने अमाउंट का आपको क्रेडिट दे देंगे वो। इक्वलाइजेशन लेवी आपको आपके पॉकेट से भरनी पड़ेगी अगर आप फेसबुक यूएसए को पे कर रहे हैं। उसका कुछ भी ऑप्शन नहीं है, पर आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं फेसबुक को अप्रोच करके कि आपने इक्वलाइजेशन लेवी भरी है, शायद फेसबुक आपको उसका भी क्रेडिट दे दे। देन वरुण आस्क, आई गेट अराउंड $1200 to $1500 वाया पेपाल पर ईयर। You can explain more about FIRC? I don't have GST number. Should I need to worry? I currently वरुण 7-8 लाख में जीएसटी के लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर नॉट परचेजिंग एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, FIRC पेपाल से लेने के लिए आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन आई विल शेयर द लिंक ऑफ ट्रांसफरवाइज एंड पेपाल दोनों का सहर्ष को, जो कि वो एक डॉक्यूमेंट में आपके साथ शेयर कर देगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है FIRC के लिए पेपाल में और ट्रांसफरवाइज में। नरेंद्र, अगर आपके सीएस को कुछ आइडिया नहीं है, you can approach me with the CA. I can try to help you out when I am free. आपके CA को मैं बता सकता हूँ। Again, I am not giving the CA services. आपके जो भी रिस्पेक्टिव CA हैं, मैं उनसे डिस्कस करके उनको एग्जैक्टली चीजें समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। तो you can approach me in those scenario. But स्ट्रक्चर जरूर करें आप उस चीज को। मेरे ख्याल से टीडीएस भी काफी लोगों को समझ में आ गया है, टीडीएस की और इक्वलाइजेशन लेवी की चीजें। Yeah, I think so. Pretty much covered everything. Is there any question? वरुण ने ये पूछा है कि आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं। वरुण, उस केस में आप ये कर सकते हैं, अगर आपके मल्टीपल गूगल और एफबी के अकाउंट्स हैं, जिन भी उनकी पेमेंट कौन कर रहा है वो स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। उन पेमेंट स्ट्रक्चर के हिसाब से आप एक पर्टिकुलर आपके सिंगल अकाउंट से उन लोगों को पेमेंट कर सकते हैं। ऑन बिहाफ पेमेंट भी होती है, ऐसा कोई वो इश्यू नहीं है। बट इनवॉइसिंग पेपर वर्क प्रॉपर होना चाहिए आपका। वो अलग अलग नाम पे हैं, उसका कोई इश्यू नहीं है, पर वो लोग होने चाहिए। ऐसा मतलब वो पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये नहीं होना चाहिए। या सर, आप कुछ पूछ रहे थे, कुछ क्वेरी था? I think so. यहाँ पे पेज पे there is no any serious query as such. The BPN is asking, I am taking payment about 60K and they are not deducting TDS. I can't afford to get deductibles also. What is pros and cons? I guess he's saying that कितना 60K कर रहे हैं? 60,000 I guess 60,000. वो ले रहे हैं कि दे रहे हैं? He's receiving. I am taking. Yeah, I think so. Yeah. अगर वो TDS नहीं काट रहे, वो उनकी प्रॉब्लम है। It is not his problem. Yeah, that's what. Yeah, it is not his problem. Right. उसको मिल रहा है। टीडीएस में 1 लाख की भी लिमिट है, वो किस सेक्शन में डाल रहे हैं। हमारी जितनी भी ब्रॉडर कैटेगरी होती है उसमें 30,000 है टेक्निकल सर्विसेज के अंदर, पर 1 लाख की भी कैटेगरी है टीडीएस की। अब शायद वो भी लेते हो, और अगर वो टीडीएस नहीं डिडक्ट कर रहे इन एनी सिनेरियो, तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कि क्या है, छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। Okay guys, are there any questions related to taxation, your queries, whatever you have, please post it. Anything about registrars also I can answer up. Yes sir. Yeah. Effective point of management. I don't know, the guys are well aware of that situation, or everyone is like having a company outside of India and then running from India and then जो कंपनी मैं वही कह रहा हूँ कि जो ये ड्रॉप शिपिंग का मैक्सिमम है। ड्रॉप शिपिंग का मैंने वही मेंशन किया कि अगर आपका बड़ा टर्नओवर है, आप बाहर की कंपनी ही करिए, पर उसका प्रॉपर पेपर वर्क करिए। पेपर वर्क इज मस्ट, ठीक है ना। सिंगापुर अभी थोड़ा डाउट है मेरे को कि जो अभी करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस चल रही है कि सिंगापुर का आगे जाके क्या सिचुएशन होगा। यूएस कंपनी या दुबई कंपनी या सिंगापुर कंपनी, ये प्रॉपर कंसल्टेशन विद योर प्रॉपर सीए, आपके लोकल सीए भी, उसके बिना मत करिए।
सीधा जाके यूएस में डेलावेयर में जाके कंपनी खोल लूं, बैंक अकाउंट, ये मत करिए। प्रॉपर यहाँ के सीए को इन्वॉल्व किए बिना कोई भी चीज मत करिए, क्योंकि एक मैं सिंपल चीज बता देता हूँ आपको। सपोज आपने सीधा जाके डेलावेयर में कंपनी खोल ली, आपने यहाँ पे आपने प्रॉपर डिक्लेरेशन नहीं दिए, कल को गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि वहां पे आपकी एक कंपनी है, ठीक है, जिसकी डिक्लेरेशन यहाँ पे नहीं है, तो वो कंपनी क्या मानी जाएगी? जो हम ब्लैक मनी सुनते हैं वो यही होती है, तो वो ब्लैक मनी मानी जाएगी, ठीक है। तो Yes. Yeah. प्रॉपर स्ट्रक्चर विदाउट सीए के मत करिए। अब मैं इंडियन ऑपरेशंस की बात करता हूँ। जब हम सोच रहे हैं इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, फ्रेंड्स, कोई भी चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं सारी चीज समराइज कर रहा हूँ। आपको एक पैन नंबर लेना है, आपको एक जीएसटी नंबर लेना है। 8-10 लाख से ज्यादा का बिजनेस कर रहे हैं साल का, लीजिए, जीएसटी नंबर भी लीजिए। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है डिसिप्लिन। कर डे टू डे बेसिस पे अगर आप डिसिप्लिन रखेंगे, अब मैं मेरा सिनेरियो बताता हूँ। मेरे यहाँ पे डेली की करीब 10 से 15 इनवॉइसेस बनती हैं। आई एम अ रजिस्ट्रार माई सेल्फ। मेरी बाहर से भी पेमेंट आती है, इंडिया से भी पेमेंट आती है। मेरे और भी काफी सर्विसेज, आई एम कंसल्टेंट ऑल्सो, तो मेरे को अलग अलग चीजों की अलग अलग पेमेंट्स डेली आती हैं। छोटी पेमेंट, बड़ी पेमेंट, $10 भी आते हैं, $1000 भी आते हैं, ₹400 भी आते हैं, 40,000 भी आते हैं। मेरा एक सिंपल प्रैक्टिस है, मैं सुबह उठता हूँ, मेरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, मैं जोहो बुक्स यूज करता हूँ। ऑनलाइन सर्विसेज के लिए मैंने अभी तक सबसे बेस्ट जो सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई किया है, नॉट फॉर द ड्रॉप शिपर्स एंड दोज पीपल, बट अपार्ट फ्रॉम ड्रॉप शिपर्स जिनका एफिलिएट का काम है, फेसबुक का काम है, गूगल एड का काम है, उनके, या कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज का काम कर रहे हैं, उनके लिए वो बहुत अच्छा आइडियल सॉफ्टवेयर है। डेली बेसिस पे आप आपकी इनवॉइसेस और परचेज उसमें डाल दीजिए। परचेज का जैसे मैंने पीछे भी बताया, आपके सॉफ्ट कॉपीज आपकी इमीडिएटली होनी चाहिए। जोहो बुक्स में जब आप परचेज की एंट्री डालते हैं, वहां पे ऑप्शन होता है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, वहां पे आप उस पर्टिकुलर इनवॉइस की सॉफ्ट कॉपी भी अपलोड कर सकते हैं, वो उसमें डालते चले जाइए। 10 से 15 एंट्री मैं खुद रोज करता हूँ, मुझे 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी की भी डेली 10-15 एंट्रियां होती होंगी। मेरे ख्याल से महीने की 15 एंट्रियां होती होंगी। 15 एंट्री महीने का मतलब हुआ आपको एक महीने में 15 मिनट देने हैं, सिर्फ 15 मिनट। और वो आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, डे टू डे करते चले जाएंगे, आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आएगा। जीएसटी के बेनिफिट बहुत ज्यादा हैं। अब मैं आपको बेनिफिट्स के ऊपर आता हूँ। प्रॉपर परचेज और सेल का स्ट्रक्चर करेंगे। आप आपके ऑफिस यूज की जितनी भी चीजें खरीद रहे हैं, सपोज आपने एक लैपटॉप खरीदा, 1 लाख रुपए का लैपटॉप खरीदा, उसमें जीएसटी लग के आ रहा है 18,000 रुपए, वो आपको इनपुट मिल जाता है, क्रेडिट, वो आपका पैसा बच गया, 18,000 रुपए जीएसटी। आपके मोबाइल का बिल आप पे कर रहे हो महीने का 500 रुपया, उसमें जीएसटी जा रहा है 90 रुपया, वो 90 रुपया आपको इनपुट मिल गया। छोटे छोटे और भी ऑफिस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस आपके जा रहे हैं, वो आप आराम से उसमें डालिए, जीएसटी का इनपुट मिल गया। प्रॉपर स्ट्रक्चर में रहते हो, आपके पास गाड़ी है, पेट्रोल का एक्सपेंस जा रहा है, वो आपके प्रॉपर एक्सपेंस में डेली टू डेली बुक करते जाइए। अगर आप जोहो बुक्स यूज करते हैं, वहां पे डाल दीजिए आपके एक्सपेंसेस विद रिकॉर्ड्स। इंटरनेट के चार्जेस हैं, इंटरनेट के चार्जेस हैं, मोबाइल के चार्जेस हैं, फेसबुक ऐड है, गूगल ऐड है, आपने मोबाइल खरीदा वो है, नाश्ता पानी किया वो भी है, आपने गाड़ी का पेट्रोल भरवाया वो भी है। सो सब चीजें आप उधर डाल सकते हैं। डे टू डे डालेंगे, आपको बिल्कुल इश्यू नहीं आएगा। थोड़ा सा खुद को डिसिप्लिन करना होगा, थोड़ा सा। मैं वही कह रहा हूँ, मुझे डेली की 15 एंट्रियां होती है, मैं खुद करता हूँ, सुबह हो जाती हैं 10 मिनट के अंदर, उससे ज्यादा ट्रबल नहीं आती। आप एंड ऑफ द ईयर ये देखेंगे, जब आप सारे लॉ कंप्लाई करते हैं, आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। सेकेंडली, पीस ऑफ माइंड, आपको डर नहीं है। कोई भी चीज पूछेंगे, कोई आया ऑफिसर, भैया तुमने ये पैसा आया डॉलर में, क्या चीज का आया? ये चीज का आया, ये एफआईआरसी। तो आपको आगे कुछ नहीं पूछेगा, क्लीन रहोगे। कुछ भी हुआ, आपको पता है आपके सारा बंच रेडी है, 5 मिनट में आप पकड़ा सकते हो। तो पीछे जो किया उससे भूल जाइए, अब से चीजों को स्ट्रक्चर करके आराम से चलिए। विनय सर, बट इन केस लाइक छोटे से मार्केटर से, छोटे से अफिलिएट पर्सन है एंड सेविंग अकाउंट्स यूज कर रहे हैं, इन केस वहां पे पर्सनल एक्सपेंसेस भी अक्यूमुलेट कर रहे हैं, बिजनेस एक्सपेंसेस भी अक्यूमुलेट कर रहे हैं, सो व्हाट शुड यू एडवाइज इन दिस केस? लाइक शुड ही आल्सो मेंटेन हिज पर्सनल एक्सपेंसेस इन अ सेपरेट एक्सेस सो दैट ही कैन नॉट मिक्स इट इन बिटवीन बिजनेस एक्सपेंसेस? देखो, जैसे ही कोई 5-6 लाख के ऊपर कर रहा है, ये एक पर्सनल आदमी का वो होना चाहिए
डिसिप्लिन कि एक छोटी सी बुक मेंटेन करे। जैसे बिजनेस के लिए तो मैंने बोला कि जोहो बुक्स कर ले, अगर छोटा काम है, काफी छोटा है, तो और भी बहुत सारे फ्री टूल्स आते हैं अकाउंटिंग के, वो मेंटेन करे। जो भी बिजनेस और पर्सनल एक्सपेंस है उनको अलग अलग मेंटेन करे। ये उसके पर्सनल के लिए भी अच्छा है कि एंड ऑफ द ईयर जब ही विल सी कि भैया कितना मेरा प्लस माइनस हुआ, आपको भी अच्छा लगेगा और आपकी अकाउंटिंग भी क्लीन रहेगी। जब आप करने शुरू करेंगे आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा इस चीज को लेके। पुराना जो भी है, मैं एटलीस्ट ये कहूंगा, अभी ये नया साल है, 1 अप्रैल से आप शुरू कर दीजिए। आप लोग अभी 1 अप्रैल से एटलीस्ट एक एक्सेल शीट अभी बनाइए कि 1 अप्रैल से मेरा इन एंड आउट जो भी बिजनेस एक्सपेंस का हुआ है वो उसमें मैं मेंटेन कर लूं। एक साइड के कॉलम में एक्सपेंस डालूंगा बिजनेस के, एक साइड के कॉलम में मैं परचेज डालूंगा मेरे, और उनके डिस्क्रिप्शंस और उनके रिलेटेड जो भी मेरा डॉक्यूमेंटेशन है उस फोल्डर में स्टोर करते चला जाऊं। टाइम ज्यादा नहीं लगेगा और उसके बाद आप डे टू डे करिए। एक बार छोड़ दीजिए, एटलीस्ट 1 अप्रैल से शुरू करिए। आदित्य, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आउट ऑफ इंडिया मैं सजेस्ट नहीं करूंगा और उसके ऊपर मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहूंगा। आदित्य ने पूछा अगेन, आउट ऑफ इंडिया के काफी क्वेश्चंस हैं। आउट ऑफ इंडिया कंपनी के सेटअप में अगेन बोल रहा हूँ, विदाउट कंसल्टेशन मैं कोई भी ब्रॉडर टर्म पे कुछ भी चीज नहीं बोल सकता। वो विदाउट प्रॉपर बिजनेस स्टडी के मैं कोई भी कमेंट नहीं दे सकता। मैं नहीं बोल सकता कि आप आउट ऑफ इंडिया कंपनी कर लीजिए जब तक आपका पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर ना समझूं। अगेन मैं रिपीट करूंगा, आप इंडियन रेजिडेंट हैं। आउट ऑफ इंडिया तभी सोचिए जब आपकी बहुत ज्यादा सेल आउट ऑफ इंडिया है, बहुत ज्यादा 2 से 4 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर कर रहे हैं। क्या स्ट्रक्चर है? आदित्य के क्वेश्चन को भी मैं यही आंसर करूंगा कि व्हाट हिज सीए सजेस्टेड ही शुड फॉलो, एंड इफ ही इज नॉट कंफर्टेबल consult few more CAs, couple of more CAs. There are few, Alok Patania is there. You can search for from Calcutta. You can ask him also. He is doing primarily setting up the companies outside India only. You can speak with his team. They are very good in that. Yeah, I think are there any questions? Sir, Vinay sir, नाम जो बताया था CA का, can you please Alok put it in? Patania. I think that's the name, right? Yeah. Yeah, fine. I will share you his farm name also. Fine. So उनका primarily काम यही है। मतलब there are lot of others also. You can probably you can find a lot of CAs around the India, especially if you are in metropolitan cities like Bombay or somewhere where you can have the CAs who are expert. Yes, so वो अलग ही CA होते हैं जो आउट ऑफ इंडिया कंपनी सेटअप कराते हैं। आपके रेगुलर सीए उसमें आपको उतना हेल्प आउट नहीं कर पाएंगे। टैक्स मंत्रा इज हिज कंपनी नेम। दिस इज वन गाय आई नो वेरी वेल, ठीक है। बाकी बहुत से आपको मिलेंगे, ठीक है। तो फॉरेन कंपनी एस्टेब्लिश करना है, आपको बहुत प्रॉपर वे में जाना होगा, बहुत प्रॉपर वे में। There's a last question about from the Amar. He's asking about if he's receiving $500 from AdSense, should he be paying GST? No, Amar, you are receiving money, right? $500 per month, which is roughly about 40,000 rupees or 35,000 rupees per month, जो कि 20 लाख से वे नीचे है। तो आपको ऐसा कोई जरूरत नहीं है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। बस आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। वरुण, ऑलरेडी इट इज अ ग्रे हेड थिंग, सो I can't answer the business itself, which is a gray hat. So, के स्ट्रक्चर की बात मैं कैसे करूं? Pankaj sir, can you please ask the question? Is there anything else, guys? Sir, केशव, please. यस, केशव, आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं शायद, ठीक है। सो कस्टम ड्यूटी तो आपको, आप एक प्रॉपर सीए से बात करें और एक एग्जीम के लोग होते हैं उनसे बात करें। तो जो कस्टम और उसका कैसे सेट ऑफ लेना है गुड्स के अंदर, ठीक है, वो पूरा आपको स्ट्रक्चर कर देंगे। कस्टम ड्यूटी और आप कैसे माल मंगा रहे हैं उसके ऊपर है, इसका पूरा स्ट्रक्चर होता है। और कस्टम ड्यूटी का भी कुछ इनपुट या कुछ अदर बेनिफिट होते हैं, पर वो तभी है जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में रजिस्टर्ड हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर, मतलब जो है मेरे ख्याल सहर्ष करता है इंपोर्ट, ही विल बी बेटर देयर टू आंसर दैट क्वेश्चन कि कस्टम ड्यूटी को कैसे यूज करना है। Yeah, he will be taking another session for that, so we'll be answering. Yeah, so you will cover in that. Yes, fine. Yeah. Hardeep sir, Hardeep Singh का एक क्वेश्चन है जिसमें कह रहे हैं कि 5,000 rupees का इनपुट क्रेडिट था, but he didn't get it despite trying everything else. But I don't who know. didn't given them? Hardeep, can you please elaborate what is exactly, who said no to you?
about your input credit or what exactly वो happened. क्या था एग्जैक्टली? Meanwhile, पंकज सर का क्वेश्चन है, he is saying कुछ नहीं होता, notices नहीं आती है. What is your final answer for that? कुछ नहीं होता, जब होगा तब पता चल जाएगा। मतलब सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि कुछ नहीं होगा, जिस दिन होगा उस दिन जो होगा वो होगा। इनकम टैक्स के केसेस में फिर भी मैं कहता हूँ ईयर टू ईयर चलता है, बट जीएसटी के केस में ऐसा नहीं होगा। जीएसटी जिस दिन फाइल खुलेगी वो लोग सीधा 15 साल के डॉक्यूमेंटेशन लेते हैं। इनकम टैक्स के केस में भी अगर उनको डाउट हो गया, क्योंकि आपकी स्क्रूटनी कभी भी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, वो कभी भी रैंडमाइज खुलती है, और अगर उनको डाउट लगा तो वो आपके मल्टीपल ईयर्स भी खोल लेंगे। तो फिर इससे अच्छा अपना डॉक्यूमेंटेशन पूरा रखिए। और ये क्यों करना, मतलब कि ये चोरी क्यों करनी, इतना बड़ा टफ काम नहीं है। एक बार आप शुरू हो गए, मैं वही कह रहा हूँ ना, आपको दिन में 15 मिनट से ज्यादा इस चीज के लिए नहीं देना पड़ेगा, अगर आपका अच्छा खासा भी वॉल्यूम है तो भी। I guess that's all. Okay, एक last question we'll take. Yeah, अमन का last question अमन आप का ले लीजिए. अमन पीछे का मैं अभी कुछ कमेंट नहीं करूंगा। अभी आप क्या करिए, जीएसटी नंबर ले लीजिए या ले रखा होगा आपने, जो भी आप परचेज कर रहे हैं उसका इनपुट जीएसटी आरसीएम में, फॉरेन की क्योंकि परचेज आ रही है, आपकी यूएस एफबी अकाउंट है, आपको उसके ऊपर 18% जीएसटी भरना है अंडर आरसीएम। वो आप बिल डालेंगे आपकी फर्म के अंदर, जो उसके अंदर आपको आरसीएम में 18% जीएसटी भरना है परचेज पे। पंकज सर, उन लोगों के लिए जो लोग लॉ को नहीं कंप्लाई करते हैं, कोई आंसर नहीं है। एवरीथिंग टाइम विल टेल, उनके लिए यही मैसेज है, टाइम विल टेल, हमें उनकी लाइन में लैंड नहीं करना है। दैट्स ऑल। Okay, the last question from Varun. He is selling the services to the local digital marketing companies and he is not creating the invoices. What should he do? वन सेकंड, आई एम जस्ट सीइंग मार्केटिंग सॉर्ट ऑफ गूगल एड्स अकाउंट्स और एफबीए। वरुण, अगर आप इनवॉइसेस नहीं भी बना रहे, आपके रेफरेंस पॉइंट के लिए इनवॉइसेस का स्ट्रक्चर बना के रखिए, ठीक है? आप उनको दे रहे हैं या नहीं दे रहे, आप अपने रेफरेंस के लिए इनवॉइस नंबर 1 2 3 जैसे जैसे पेमेंट आ रही है उस हिसाब से बना के रखिए आपके अकाउंटिंग स्ट्रक्चर में, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। तो आप पर्सनली उनको पूछ के लीजिए. देखिए, मोस्टली जब मैं फ्री अवेलेबल हूँ, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम वाया फेसबुक और व्हाट्सएप और ट्विटर। कोई भी क्वेश्चंस हो कभी भी पूछिए, कोशिश करूंगा मैं हमेशा आंसर करने की, वट एवर आई नो एज पर माई बेस्ट। सो कभी कभी लेट हो सकती है आंसर करने में। I think you have to be a little bit patient when you are asking someone, especially when it is related to taxation. और अगेन मैं कुछ क्योंकि आई एम नॉट अ सीए, मैं मेरे बिजनेस एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सब चीजें बता रहा हूँ। सो जहाँ पे कोई कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस जैसे यूएस कंपनी स्ट्रक्चर है, सो वो मेरे फोर्टे नहीं है। उसके लिए मैं अगेन वही कहूंगा कि आपको प्रॉपर पर्सन्स को हायर करना पड़ेगा। अगेन आई विल से कि डोंट ट्राई दोस थिंग योरसेल्फ, हायर प्रॉपर पीपल। जब आप बात कर रहे हैं बाहर कंपनी स्ट्रक्चर सेटअप करने का, ये छोटी चीजें नहीं होती हैं। मैंने भी सेटअप की हैं बाहर कंपनियां। आई वाज आइकन एक्रीडेटेड रजिस्ट्रार, वी वर रजिस्टर्ड इन डेलावेयर इन 2008। मैंने 2008 में यूएस डेलावेयर में कंपनी खोली थी, एंड 2 ईयर लेटर वी फाउंड वी डिड सम मिस्टेक, और हमने यूएस का टैक्सेशन नहीं भरा था, फेड टैक्स। 4 साल का मेरे को एक साथ भरना पड़ा था 2011 में, $6,000 का पेनल्टी के साथ यूएस में। फेडरल नंबर नहीं, फेड टैक्स मैंने नंबर ले रखा था, बिकॉज कंपनी रजिस्टर होती है तो आप जैसे इंडिया में आईटीआर भरना है, यूएस में भी फेडरल रिटर्न हर साल भरना होता है। जो मैं वहां पे कंपनी सिर्फ नाम के लिए थी, ऑपरेशनल नहीं थी, सो हमने वो स्किप कर दिया था। तो बाद में 4 साल का हमने पेनल्टी के साथ भरा था आईटीआर। 0 आईटीआर था एज यूजुअल, बट $6,000 की पेनल्टी लगी थी। Okay, I guess तो that's all. Guys, we are closing this session. I hope you had all your questions being answered. If you have still some queries, you can, as Vinay sir has said, you can still get in touch with him anywhere you want, be Facebook, Twitter, wherever you want. They will try to answer you whenever they find the time. Thank you so much, Vinay sir. बहुत अच्छा webinar था, and it was really like, I hope like a lot of people got their queries clear, especially when they cannot afford to hire the CA, or they feel that hiring CA is not the worth of my time. I don't know, lot of people have this kind of assumption that they cannot hire the CA. उनके लिए मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, छोटा सा चीज इधर। सर, आप सब लोग भी प्रोफेशनल्स हैं, आप भी कमाते हैं, सीए भी प्रोफेशनल्स हैं। सो जब आप कमा रहे हो तो थोड़ा
खर्चा भी करना खर्चा सीखो। yeah, exactly. सही कहा, absolutely true guys. ना see, earning money is one thing. You will earn lot of money, you may not earn money, but the taxation is one something that you have to be taking care from the start. Once you mess up everything, the regrets are going to be very costly affair. So you need not be thinking in terms of that I'm going to pay this much amount of taxes and this will cut my profit. It's not going to happen that way. Profits are made after paying your taxes, not before paying your taxes, right? So Yeah. that's all for today. I guess it was good session. Please put up your appreciation for Vinay sir in the group and let us know Thank you. how you felt for this webinar. Okay. Thank you so Thank much. you. Thank you so much. Thank you. Thank you for joining us. And don't forget to join our group and subscribe for more.